स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करते हैं। सबसे पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल भेजें, अपना नाम भेजें, अपने शहर का नाम भेजें, फिर अपना कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल भेजें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। रवि देवरा हैं कुंवरजी ग्रुप से और दिव्या गगलानी है, कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट है एक्सिस सिक्योरिटी से। आप दोनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। आप दोनों के पास आते हैं, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गोल्ड डिमांड को लेकर WGC यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के रिपोर्ट आ गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ WGC इंडिया के रीजनल CEO सोम सुंदरम PR साहब हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, आप लोगों की Q2 की रिपोर्ट आई है, उसमें डिमांड बढ़ी हुई दिख रही है। हालांकि उसमें सबसे ज़्यादा फैक्टर Q2 में जो अक्षय तृतीया के महीने का था, वो डिमांड सबसे ज़्यादा यहाँ पर ड्राइव करता हुआ दिख रहा है। क्या लग रहा है अब आगे की तिमाही को लेकर, क्या अनुमान है? और या सेकेंड हाफ में अगर 2022 के बचे हुए महीने आप बात करें, अगले 6 महीने में किस तरह के डिमांड की उम्मीद करें? Yes, second quarter was very good, but it is still not as good as it was in the pre-COVID years because last year quarter 2 was affected by COVID. So the low base effect has actually reflected in a high growth of 43%. So it is really, if you really look at the absolute figures, the 170 tons of demand is not something which is one of the highest in second quarter. However, it has done better. So coming back to the second half is always the biggest period for gold because you have post-harvest, you have puja, then you have Dhanteras and Diwali, things like that. At the moment, what we expect is that the second half will definitely be better than the first half, but will it be as good as the last year when we saw a 500-ton demand? We believe that given all the factors that are at play, it may not be as good as the last year, but it will still be better than the first half where we have total demand of 307 tons. सर, ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जो सेकेंड हाफ में प्राइसेस को यहां पर ड्राइव कर सकते हैं या नीचे ला सकते हैं? एक तो मॉनसून का फैक्टर है। अगर मॉनसून बेहतर रहा जिस तरह अभी तक है मॉनसून, लेकिन अभी भी नॉर्थ इंडिया को लेकर चिंता है, तो ऐसे में मॉनसून, महंगाई, इसके अलावा और कौन से फैक्टर आप देख रहे हैं जो यहां से गोल्ड के प्राइस को नीचे खींचेंगे या ऊपर की तरफ ड्राइव करेंगे? India does not determine the price. So none of what happens in India determines the gold price. We are price takers, not price influencers at this moment of time. But what happens is demand changes depending on how prices are determined by essentially the US interest rates and other factors in the short run. So currently what is determining the price is actually the US interest rates. As the interest rates go up, gold price comes down. So that is what has happened. But then as the US interest rates go up, you also see currency depreciating. Therefore, you have a certain balancing effect in India. Now, how this will play out in the second half, we have seen a 75 basis hike now. How it will play out has to be seen. How much rupee depreciates, whether rupee gets stronger. If equity markets perform well, rupee can get stronger. So all these are factors which we cannot at this moment of time forecast with any degree of certainty. But coming back in terms of demand, monsoon holds a very, very important, it's an important factor for second half. We believe it will be good. But as I said, it may not be as good as last year because last year there was a latent demand, the lockdowns, etc. So we saw 500 tons in the second half. May not be as good as that. ओके सर, आपने फेड की बात की, तो फेड के टोन जिस तरह से अभी उन्होंने सेंस मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो अगली जो बैठक सितंबर महीने में होगी यूएस फेड की, उसमें उम्मीद की जा रही है कि उस तरह से एग्रेसिव रेट बढ़ोतरी ना हो, क्योंकि उन्होंने ग्रोथ को लेकर भी चिंता जताई है। ऐसे में लग रहा है कि क्या इंटरनेशनल मार्केट में भी और इंडिया मार्केट में भी प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा उस फैक्टर से आगे? See, what happens is every time there is an expectation of rate increase by the Fed or whatever, then the markets react with a lot of anxiety. But every time the rate increase happens, you find that it is already absorbed and things become normal. We have seen it even in the past. Post a rate increase, gold starts performing better. But of course, we need to see how far this rate increase will go. So there are still some more rate increases expected.
So essentially, once the clarity comes, now 75 has already happened, and we'll have to see again what happens in the next few months. It will only start strengthening gold as we go along, because there is a lot of uncertainty. There is too much of inflation. So all this will definitely be favorable to gold. But at this moment of time, investors, when the rate increase goes up, they move gold, or they move money away from gold and into more riskier securities. अगर जिस तरह से अनसर्टेनिटी है ग्लोबल इकोनॉमी में, और उसका तो फ़ायदा गोल्ड को मिलेगा ही, लेकिन अब फेड की चाल, क्योंकि एक तरह से जो दरें बढ़ाने को लेकर, जो ब्याज दरें बढ़ोतरी को लेकर दुनिया भर के सेंट्रल बैंक में एक वॉर सा चल रहा है और हर तरफ ब्याज दरें लगातार बढ़ाई जा रही है, उसका तो नुकसान होगा, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। सर, प्राइस टेकर की बात आप कर रहे थे, अब कल से IIBX पर शुरू हो रहा है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज देश में शुरू हो रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि भारत भी अब प्राइस डिस्कवरी के लिए एक बड़ा मार्केट बन जाएगा, और प्राइस डिस्कवरी के लिए अब बाहर नहीं देखना पड़ेगा, कॉमेक्स की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। IIBX बुलियन मार्केट में एक भारत भी इंटरनेशनल लेवल पर प्राइस को असर डाल सकता है, प्रभावित कर सकता है। ऐसे में क्या लग रहा है, कितना बड़ा गेम चेंजर होगा इंडियन बुलियन मार्केट के लिहाज से IIBX? IIBX is not just for the Indian bullion market, it is for the global bullion market. It is very important to understand that. Yes, immediately it will mean a lot to our importers, but it will mean a lot to the global bullion market. Now, overnight, it is not going to happen. But if you spoke rightly about the price discovery mechanism. Okay. India is a very, very big consumer. So IIBX, few years from now, when you look back, it will be a milestone development, not just for India, but for the global markets. ओके सर, तो IIBX के जरिए क्या लिक्विडिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी और इंटरनेशनल प्लेयर की भी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी? हालांकि इनिशियली तो अभी जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं वो ज़्यादातर ज्वेलर्स हैं, हालांकि इंस्टीट्यूशनल के लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं, तो क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी भागीदारी यहाँ पर बढ़ेगी IIBX के जरिए? Definitely it will mean a lot for the foreign investors, foreign suppliers. Of course, the qualified jewelers who have been allowed to import directly, they will start now interacting directly with the suppliers. Intermediaries may actually not be needed. So all this will take effect in the next few years. It is not overnight, because global market has worked in a certain way in gold. You can't change it overnight. Okay. But if you really look at it, these changes are going to be very big, because gold is going to play a big role in the monetary system. Okay. You're not going to go back to gold standard, but it will play a very big this thing. You need price transparency, and India will provide that. IIBX will provide that. ओके, शुक्रिया सर, शुक्रिया सोम सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और पूरा WGC की रिपोर्ट पर भी बात की, और IIBX इंडिया के लिहाज से कितना बड़ा होगा और कितना टाइम लगेगा, तमाम डिटेल्स बताने के लिए शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलियन मार्केट की बात करते हुए सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की चाल देख लेते हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर आज शुरुआती कारोबार से ही अच्छी तेजी दिखा रहा है। MCX पर बात करें तो करीब करीब 350 से 400 रुपए की तेजी MCX गोल्ड में दिख रही है, 1300-1400 रुपए की तेजी हम चांदी में देख रहे हैं। रवि, क्या लग रहा है आपको, यहां से कितनी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं? अगर किसी को पोजीशन यहां पर बनानी है तो क्या करना चाहिए, कितनी तेजी के लिए प्ले करें यहां पर गोल्ड में और सिल्वर दोनों ही काउंटर में? जरूर सर, तेजी काफी आ चुकी है। पर्टिकुलर अभी मार्केट का जो टोटल फोकस है वो शायद अभी यूएस के जीडीपी के डेटा जो 6 बजे शेड्यूल है उसके ऊपर जाएगा। अगर 6 बजे शेड्यूल डेटा जीडीपी के थोड़े खराब या इनलाइन पे आ जाता है तो मुझे लग रहा है कि फेड की जो नेक्स्ट जो फेड चेयरमैन ने बात किया था कि वो डेटा ड्रिवन पॉलिसी अनाउंस करेंगे, तो आई थिंक मार्केट का पूरा फोकस डेटा के ऊपर रहेगा। जब तक फेड रिजर्व की नेक्स्ट स्पीच या नेक्स्ट मीटिंग खत्म नहीं होती तब तक शायद सारे डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लग रहा है कि डेटा का एक बार ध्यान रख लेना चाहिए। हालांकि जो फैक्टर्स है वो अभी थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि अपर साइड जो 1740 का एक रेजिस्टेंस गोल्ड में बना हुआ है, अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो इंटरनेशनल मार्केट में 1760 तक के लेवल एक्सटेंड हो सकते हैं। वही चांदी में 1950 का रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक होता है तो 20 से 80 तक के लेवल एक्सटेंड हो सकते हैं। हालांकि इतने चलने के बाद थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी इंडियन मार्केट में देखने को मिले या ग्लोबल मार्केट में देखने को मिले तो रिस्क रिवॉर्ड जरूर से ध्यान रखें। अब लेवल स्पेसिफिक इंडियन मार्केट की बात करें तो 51,000 के करीब गोल्ड चल रहा है। मुझे लग रहा है अगर कोई इवनिंग में डीप मिले 50,700 से 800 के करीब तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए।
डाउन साइड 50,300 का स्टॉप लॉस एंड मुझे लग रहा है 51,500 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। वही चांदी में 56,800 का हर्डल है, वहां तक के टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब जब तक 55,500 का लेवल डाउन साइड ब्रेक नहीं होता, आपको ट्रेंड तेजी का ही रहेगा। अगर 56,800 ब्रेक होता है तो 57,500 का एक इमीडिएट टारगेट आपको सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में मेरा मानना है कि यहाँ से और 1 से 1.5% की तेजी अभी भी इवनिंग में ये डेटा के बाद आ सकती है। आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ कई दर्शकों के सवाल भी आ चुके हैं। पहले कॉलर ओम प्रकाश हैं भिलाई से, इनका सवाल क्रूड को लेकर है। क्रूड में भी आज तेजी दिख रही है। दिव्या गगलानी जी, क्या लग रहा है आपको, क्रूड में कितनी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं यहां से? गुड इवनिंग विश्व मोहन जी। रूडल की मैं बात करूं तो मिक्स फंडामेंटल है। एक तरफ डिमांड कंसर्न्स है इकोनॉमिक स्लोडाउन को लेकर, और साथ ही यस्टरडे जो इन्वेंटरी डेटा आया था तो उसके वजह से हमें एक तेजी देखने मिली। पर अगर हम देखें तो लंबे समय से क्रूड ऑयल जो एक रेंज में कारोबार कर रहा है 7,600 लेके 8,000 तक, तो प्राइसेस इस रेंज को तोड़ नहीं पा रहा है, तो हमें ये रेंज में ही ट्रेड करना चाहिए। हाई लेवल पे अगर हम सेल कर सकते हैं, 7,950 का लेवल आता है तो वहाँ पे सेलिंग करें। स्टॉप लॉस हम 8,000 का रखें और टारगेट हम नीचे में 7,880 का रख सकते हैं। ओके रवि जी, क्रूड पर आपका व्यू क्या है? क्रूड में क्या करने की सलाह आप दे रहे हैं आज? जरूर से मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से थोड़ा 8,000 का हर्डल है वो इंडियन मार्केट में, वही इंटरनेशनल मार्केट में 100 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। हालांकि थोड़ा बहुत मैं रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डाउन साइड 7,800 से ऊपर 8,000 तक की रेंज रहेगी। मुझे लग रहा है कि अगर इंट्राडे का कॉल लेना है तो आप जरूर से उसमें बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखें, क्योंकि आज रिस्क ऑन माहौल है। हालांकि यूएस जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये डेटा सही आ जाता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत डिप पे बाय करना चाहिए, बट ये प्योर इंट्राडे। अगर 7,950 7,980 के करीब आता है तो वहां पे एक बार आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। बट मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट आज मीटिंग के बाद थोड़ा बहुत सेंटिमेंट पॉजिटिव रह सकता है। ओवरऑल 8,000 के लेवल के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता तब तक मैं बड़ी तेजी के एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहा हूँ। ओके चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। एसके बंसल है ग्वालियर से। लेड में रवि जी क्या करना चाहिए, इनका सवाल है। आई थिंक वहां पे होल्ड करना चाहिए। लेड में डिलीवरी के काफी इश्यूज है, मींस के वो डोमेस्टिक मार्केट हो या चाइनीज मार्केट हो, इसमें लगातार देखें तो लीड में एक तेजी बनी हुई। इसका रीजन भी यही है, एक तो बैकवर्डेशन है और उसमें साथ में डिलीवरी रिलेटेड एंड फिजिकल डिलीवरी रिलेटेड काफी इश्यूज है। इतना माल नहीं है जितना ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, तो मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से आपको एक शॉर्ट कवरिंग का माहौल अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिला था और आगे अभी और ये माहौल देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि बेस मेटल्स की तेजी के साथ लीड भी आउट परफॉर्म कर सकता है। 177 के करीब प्राइस चल रहे हैं, वहां पे थोड़ी वोलेटिलिटी लिमिटेड है, तो टारगेट पे आप कंजर्वेटिव रख के चल सकते हैं। 180 तक के टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लीड में। 175 का स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी पोजीशन कैरी करें अगर लॉन्ग हो। अगर नई पोजीशन बनानी है तो ये रेट से नए बाई पोजीशन भी ली जा सकती है। ओके, ये व्यू है लेड को लेकर। चलिए अगले दर्शक है योगेंद्र नाथ सिंह है यूपी से। सिल्वर माइक्रो का भाव कहां तक जाएगा, इनका सवाल है। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट का भाव जानना चाह रहे कि कहां तक जाएगा अगस्त सिल्वर माइक्रो। दिव्या, इन जो अभी भाव है 56,900 रुपये, 56,900 के आसपास है। 1,300 रुपये की तेजी दिख रही है सिल्वर माइक्रो में। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट का भाव कहां तक जाते हुए आप देख रहे हैं? सिल्वर की बात करूं तो जैसे कि हमने देखा कि कल मीटिंग जो आया फेड का, तो उसमें उन्होंने जो काफी साफ दिया हुआ है कि आगे जाके जो रेट हाइक है वो काफी स्लो करेंगे और साथ ही इकोनॉमिक डेटा को देख के ही करेंगे, एग्रेसिव रहेंगे। तो उसके वजह से हमें डॉलर इंडेक्स में एक अच्छा खासा सेलिंग देखने मिला, नरमी देखने मिली, तो प्राइसेस में हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिला। तो सिल्वर की अगर मैं बात करूँ 56,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो ही वो एक रैली दे सकता है। तो 56,000 के ऊपर अगर सस्टेन करें तो हम वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम नीचे में 55,500 का लगाए और टारगेट हम 56,800 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर में। ओके, अगले कॉलर हैं क्रिश हैं दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए दिव्या, क्या करना चाहिए कॉपर में? बेस मेटल की अगर मैं बात करूं तो आज सारे के सारे बेस मेटल में अच्छी खासी हमें तेजी देखने मिली। वो प्राइसेस जो है वो एक गोल्ड और सिल्वर को फॉलो कर रहा है। अभी सबकी नजर चाइना में जो मीटिंग होने वाली ये वीक में उसके ऊपर रहेगी। उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफिशियल ग्रोथ आउटलुक पे डिस्कस करेंगे और साथ में वहाँ पे रियल एस्टेट के जो कंसर्न्स है
तो उसके ऊपर स्टिमुलस की भी बात होगी। अगर आउटकम पॉजिटिव आता है तो एक रैली हमें देखने मिल सकती है। कॉपर का भी जो भी ट्रेंड है वो पॉजिटिव लग रहा है। अगर कॉपर 641 के आसपास आता है तो वहाँ पे हम बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 638 का लगाए और टारगेट हम 645 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ निशांत हैं मेरठ से। इनका सवाल है, इन्होंने चांदी बाई कर रखा है 56,200 रुपये पर और शाम के सत्र के लिए और मंडे तक के लिए ये टारगेट जाना चाह रहे हैं। क्या रवि जी, क्या टारगेट देख रहे हैं आप चांदी में? 56,200 की बाइंग है, क्या टारगेट है? स्टॉप लॉस भी जरूर बता दीजिए। जरूर से मैंने जब मैं व्यू शेयर कर रहा था तब हाईलाइट किया था कि क्योंकि आज चांदी में 1300-1400 पॉइंट की मूवमेंट ऑलरेडी आ चुकी है तो थोड़ा स्टॉप लॉस आपको दूर रखना होगा। बट 55,500 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन कैरी करें। मुझे लग रहा है कि इवनिंग या कल तक एक बार 56,800 तक के लेवल आपको सिल्वर के जो बड़ी सिल्वर है वो कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकते हैं। वहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले। अगर ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और आप पोजीशन कैरी करना चाहते हैं तो बाद में आपका ट्रेलिंग कॉस्ट आपका स्टॉप लॉस का करके 57,500 तक पे रुक सकते हैं। बट फिर इमीडिएट मुझे लग रहा है कि 56,800 तक के टारगेट आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं। 55,500 का स्टॉप लॉस लगाए। ओके, अगले दर्शक है प्रदीप है उज्जैन से। क्रूड ऑप्शंस पर राय जानना चाह रहे हैं कि कोई ऑप्शंस पे कोई ट्रेड है क्या आपके पास दिव्या? क्रूड ऑयल की मैं बात करूँ, जैसे मैंने डिस्कस किया कि प्राइसेस एक रेंज में कारोबार कर रहे हैं। अगर हमें एक सेलिंग में ले सकते हैं, 7950 का लेवल आता है तो वहां पे हम 7,900 का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। वो हमें एक अच्छा मुनाफा दे सकता है लंबे समय के लिए। ओके, चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अभिषेक हैं बिहार से। इनका सवाल क्रूड पर है। रवि जी, इन्होंने 7500 स्ट्राइक प्राइस की पुट ले रखी है 220 रुपए की। जानना चाह रहे हैं रवि जी कि क्या करना चाहिए? 220 में बाइंग है, 7500 स्ट्राइक की पुट है, क्या करें? अभी तो काफी आउट द मनी हो चुका है बट मुझे लग रहा है कि आप अगर 8,000 का लेवल आप फ्यूचर में ध्यान रखें। जब तक 8,000 के लेवल के ऊपर नहीं जाता तब तक होल्ड करें। अगर 8,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो आप पुट से एग्जिट हो जाए, तब तक होल्ड करें। डाउन साइड अगर क्रूड में 7700 तक के लेवल्स, तो यहाँ से 150-200 पॉइंट के अगर कुछ गिरावट मिले तो वहां पे आप अपनी पोजीशन मींस के एट द मनी होने की राह ना देखें एंड एक बार उसमें से एग्जिट कर ले। ऑल ओवर ट्रेड मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक रेंज बाउंड ट्रेड है बट हालांकि आपने आउट द मनी एंड काफी आउट द मनी ऑप्शन बाय की है तो उसमें कोई इतना ज्यादा प्रॉफिट होने की एक्सपेक्टेशंस नहीं दिख रहे मुझे। तो 8,000 का स्टॉप लॉस फ्यूचर में ध्यान रखें एंड आपकी पोजीशन कैरी करें। बट अगर आपके प्राइस के करीब आ जाता है जो मुझे उम्मीद है तो वहां पे एक बार आप अपनी पोजीशन को अनवाइंड कर सकते हैं। ओके, अगले दर्शक हैं महावीर हैं बेंगलुरु से। क्या चांदी 62,000 तक जा सकती है क्या? दिव्या गगलानी, आपको लग रहा है कि 62,000 तक चांदी जाएगी? बात करूँ तो अभी डॉलर इंडेक्स को थोड़ा कमजोर होना पड़ेगा। जब तक डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर है तब तक थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पर हमें एक ट्रेंड में ट्रेड करना चाहिए। अभी एक शॉर्ट कवरिंग आया हुआ है तो कोई भी डिप्स आता है तो वहां पे हम बाई करके चले। 62,000 का लेवल थोड़ा सा मुश्किल है पर एक साल के अगर तीसरे का होराइजन है तो एक साल में आ सकता है। ओके, चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। मनीषा जी हैं पलवल से। इनका सवाल कॉपर को लेकर है कि कॉपर शाम के सत्र में किस तरह के लेवल दिखा सकता है। रवि जी, क्या लग रहा है? कॉपर का टारगेट बता दीजिए और इनको स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। जब से 640 के करीब प्राइस चल रहा है यहाँ पे एक बार बाय पोजीशन ले सकते हैं। 635 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है कि इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। 650 तक के लेवल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली लेवल पे बाय हो सकता है 635 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये व्यू है कॉपर को लेकर आपके लिए। 641 पे बाई करें, 650 का टारगेट है, 635 का स्टॉप लॉस है। मनीषा जी। अगले दर्शक मयंक गुप्ता हैं यूपी से। सर, आज एल्युमिनियम या कॉपर में क्या ट्रेड लेना चाहिए? इनका सवाल है। दिव्या, क्या लग रहा है, एल्युमिनियम या कॉपर, क्या बढ़िया आपको ट्रेड के लिए लग रहा है? और जो भी बढ़िया लग रहा है उसका टारगेट और स्टॉप लॉस बता दें। कॉपर जैसे मैंने डिस्कस किया कि 641 का एक अच्छा लेवल है बाइंग का। अगर वहां पे आता तो हम वहां पे बाइंग करके चले। स्टॉप लॉस हम 638 का लगाए और ऊपर में हम टारगेट 645 और 648 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एल्यूमिनियम भी काफी लंबे समय से एक रेंज में कारोबार कर रहा था तो पहली बार हमने उसमें एक ब्रेकआउट देखा 213 के ऊपर। तो एल्यूमिनियम में भी जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव है। 212 तक अगर एल्यूमिनियम आता तो वहां पे हम बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 210.50 का लगाए और टारगेट हम ऊपर में 214 और 216 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ओके दिव्या, एक और सवाल नरेंद्र जैन रतलाम का है। ये जानना चाह रहे हैं कि चांदी क्या 56,700 तक आज इवनिंग में दिखा सकती है क्या? डेटा है शाम को जीडीपी का डेटा, उसका एक्सपेक्टेशन 0.4 है। अगर डेटा तो नेगेटिव आता है तो हमें एक डॉलर इंडेक्स में सेल ऑफ देखने मिल सकता है, तो प्राइसेस में हमें एक शॉर्ट कवरिंग और देखने मिल सकती है। तो डेटा के बाद थोड़ा वेट करें शाम तक, उसके बाद हम कॉल ले सकते हैं। ओके अगले दर्शक है रमेश पटेल अहमदाबाद से। इनका सवाल है आज शाम के लिए ट्रेडिंग के एंगल से सिल्वर में क्या करना चाहिए? रवि जी क्या सलाह देंगे आज शाम के लिए? सिर्फ आज शाम के लिए अगर सिल्वर में कुछ ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से 56,000 के करीब मिलते हैं तो सिल्वर में एक बाय पोजीशन बना सकते हैं। 55,500 का स्टॉप लॉस, एंड अगर जीडीपी के डेटा फेवर में आ गए तो 56,700-800 तक के लेवल्स आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक डेटा ड्रिवन है। अगर आप सेफ ट्रेडर है तो डेटा के बाद ट्रेड करें। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना एंड स्टॉप लॉस कर लगाना जानते हैं तो मुझे लग रहा है कि 56,000 पे आप बाय की लिमिट भी प्लेस कर सकते हैं। ओके अगले दर्शक हैं किशन है नासिक से। जीरा का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। रवि जी जीरे को लेकर क्या आउटलुक है आपका? जीरे में लगातार तेजी बनी हुई है, हालांकि हाई लेवल पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिला है, बट मुझे लग रहा है कि जीरा में पर्टिकुलर 23,400-500 का एक अच्छा बाइंग रेंज है। अगर डिप पे 400 के करीब मिल जाता है तो इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। 23,000 के करीब स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है कि इस टाइम जीरा ऑल टाइम हाई 24,000 का लेवल ब्रेक हो सकता है इसमें, तो 24,200 तक के लेवल्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा शॉर्ट टर्म का ट्रेड रखे एंड 23,400 के करीब नई बाइंग पे की चल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि जो शॉर्ट स्टॉक था एंड जिस हिसाब से लास्ट ईयर का भी ओपनिंग स्टॉक काफी कमजोर था, तो मुझे लग रहा है कि इस साल अक्टूबर के बाद एक शॉर्टेज वहां पे दिखेगी और अच्छे प्राइस आपको वहां पे देखने को मिल सकते हैं। ओके अगले दर्शक हैं महावीर हैं बेंगलुरु से। रवि जी इनका सवाल है क्या 15 दिनों में 56,000 गोल्ड आएगा क्या? ये तो बहुत ही मुश्किल सा टारगेट है। रवि जी क्या लग रहा है 15 दिनों में गोल्ड आपको दिख रहा है 56,000? मुश्किल भी है और काफी इम्पॉसिबल भी है। इतना बड़ा फेड मींस के जो कोविड का इवेंट था तब 50 से 55 इतना जल्दी आया था। ऐसा कुछ इवेंट हो तो शायद कुछ कह नहीं सकते, बट अभी के जो फंडामेंटल प्लेस है मुझे नहीं लग रहा कि 52,000 ऊपर भी सस्टेन होना चाहिए अगले 10 से 15 दिनों में। तो आई थिंक एक लिमिटेड टारगेट के साथ ट्रेड करें। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर जब कल फेडरल रिजर्व चेयरमैन की स्पीच पूरी सुने तो उसमें क्लियर इंडिकेशन है कि सारे अभी डेटा इंपॉर्टेंट हो गए और डेटा एक अच्छे खराब ऐसे भी आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी प्राइसेस में। तो सिंगल साइड मूवमेंट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट 52,000 तक के लेवल अगर 15 दिन का आपका नजरिया है तो आप वहां पे ये टारगेट रख के चल सकते हैं। 50,700 के स्टॉप लॉस के साथ आपकी बाय पोजीशन कैरी करें। ओके चलिए अब कमोडिटी निवेश को यहीं समेटने का वक्त आ गया। शुक्रिया रवि जी आपका, दिव्या गगलानी जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विशेष। नमस्कार।